This afternoon, the word that I want to come before you is the title is Do Not Let Your Heart Be Fearful. और आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है कि अपने मन को कभी डर डर में ना होने दे Or do not let your heart be troubled. और अपने मन में कोई भी परेशानियों को ना आने दे। Have you been in a situation where at times you have been so fearful about certain things and that certain thing never occurred? और क्या आप अपने जीवन में कभी ऐसी स्थिति में आए हैं जहां पर वो आपका मन बहुत डर से भरा हुआ हो और आप उस इसी चीज से बाहर ना निकल पाए हो? Or is any one of you this afternoon who has come here living a life and going through a season of fear? और हम में से यहाँ पर जो भी जन यहाँ पर आए हैं कभी ना कभी किसी न किसी कारण से हम अपने जीवन में उस डर के समय से हम होकर गुजरते हैं। If you have listened to the promises of the living God, अगर आपने उस खुदा के वायदे को अगर सुना होता then we would realize that all of those worries and tensions and sleepless nights were really of no use. फिर हम ये जान पाते कि जितनी भी जो चिंताओं में जो हमने रातें बिताई है, रात को हम सो नहीं पाए हैं, जितने भी हम मानसिक समस्या से हम गुजरे हैं उन वो सब व्यर्थ थी। Yes, as a human, it's very natural for us to worry when things goes wrong. हाँ, एक मनुष्य होने के नाते ये प्राकृतिक स्वभाव है कि हम वो चीजों में पड़ते हैं। But Jesus promises us that he would take control of every situation. लेकिन प्रभु यीशु इस बात का हमें वायदा देते हैं कि वो हर एक स्थिति को वो नियंत्रण करते हैं। And today I want to take you to a verse from the book of Luke chapter 8 verse 49 and 50. और आज मैं आपको लूका की पुस्तक उसका अध्याय 8 का 49 और 50 में ले जाना चाहूंगा। And in this story you see a situation of fear. और यहाँ पर एक घटना है जो कि बताती है डर के बारे में। And it says, while Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead, he said. Don't bother the teacher anymore. Hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid, just believe and she will be healed. इसमें ये कहता है वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह कहकर उससे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। When you look at this verse, then automatically your thoughts goes to faith. और जब आप इस वचन को सुनते हैं तो आपके जो विचार है अपने आप ही विश्वास की ओर चले जाते हैं। But when you look at this verse 50 more carefully, the focus of our attention goes to do not be afraid. लेकिन जब हम इस वचन को और गहराई से और अच्छे से देखते हैं तो जो आपका ध्यान है वो इस शब्द में पहुंचता है कि तू मत डर। Imagine a time when you are going through so much fearful and Jesus comes to you and says this word, why are you afraid? Do not be fearful. सोचिए कि आप अपने जीवन में एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जो बहुत ही डरावना सा है और उस पल में यीशु आपके सामने आकर कहता है कि मत डर, तुम क्यों डरते हो? How many of us are going through a season of fear? हम में से कितने जन हैं जो इस डर वाले समय से भी गुजर रहे हैं? It looks like many of us are. ये कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि हम में से बहुत से लोग A season of fear, a season of doubts, एक ऐसा समय जिसमें डर और ऐसा समय जिसमें शक है। and all that you want to know and you want to hear is that Jesus would tell you not to be fearful. और ये जो भी आप सुनना चाहते हैं वो ये है कि यीशु कहता है कि मत डरो। Now there's another verse in the Bible in John chapter 14 verse 1. और अब एक दूसरा वचन है जो कि यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 1 में है। And in this verse as well, Jesus talks about fear. और इस आयत में भी जो यीशु है वो डर के बारे में यहाँ पे बताते हैं। He says, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। He is addressing fear. यहाँ पर वो उस डर को बता रहे हैं। And what Jesus wants to convey in both of these Bible verses और जो यीशु जो संदेश देना चाह रहे हैं इन दोनों ही आयतों में is if Jesus is commanding you not to be afraid, if Jesus is instructing you, not requesting you, then there is a possibility for us to control our thoughts and emotions. तो यहाँ पर जो यीशु वो आपसे कह रहा है कि अगर तुम कैन प्लीज पार्डन
It means Jesus, we can control our thoughts and emotions. तो यहाँ पे यीशु कह रहा है कि तू मत डर। यहाँ पर ये कोई विनती नहीं कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पर एक उस सलाह दे रहा है कि तू मत डर। तो इसका अर्थ ये है कि हम उस स्थिति को हम नियंत्रण में करें। If the creator of heaven and earth and your creator is telling you that, come on, I have created you with such a system in you that you can control your thoughts and emotions. और अगर जैसे कि मानो जो हमारे इस धरती का जो रचयिता है, जिसने हमें बनाया है, उसने हमें इस तरीके से रचा है, अगर वो कहता है कि हम अपने जो मन है उसको हम नियंत्रण करें। If it was not so, Jesus would never tell you not to be afraid. अगर ऐसा ना होता तो यीशु कभी भी ना कहता कि मत डर। Look at the first instances in the book of Luke, chapter 8, 49, 50, where Jairus' daughter is dead. आइए हम उस पहली घटना को देखें जहाँ पे जो आराधनालय के जो सरदार है उसकी बेटी मर चुकी होती है। I am sure all of us have been in situations where some of our loved ones have passed away. और मैं जानता हूँ कि हम में से बहुत से इस स्थिति में आए होंगे जब हम अपने किसी प्रिय को खो देते The हैं। environment is sorrowful, it's sad. जो वहाँ का जो वातावरण होता है वो बहुत ही दुख वाला और There's उदास वाला, fear in the eyes of people, और लोगों की आंखों में डर होता है fear about the future, अपने भविष्य को लेकर, fear about uncertainty in the future. और भविष्य में न जाने कुछ क्या आ जाए। And death is the most fearful thing in the hearts of man. और मृत्यु एक ऐसी सबसे डरावनी चीज है मनुष्य के मन में। But in the midst of Jesus enters the room. लेकिन इन सभी के बीच में जो यीशु है वो कमरे में प्रवेश कर, And the sense of all of those people except the parents who were there, and he began to speak life into the daughter. और वहां पर वो सबको बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ उनके उस बच्ची के माता पिता के अलावा, और वो उस बच्ची के जीवन के ऊपर जीवन को बोलते हैं। Second instance in John chapter 14 verse 1, और दूसरा जो यहाँ पे घटना है वो ये है यूहन्ना की 14:1 में। when you look at John chapter 14, 15 and 16, जब यहाँ पर आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय 15 और 16 देखते these हैं, 3 chapters are instructions before he was to be crucified on the cross. और ये तीनों अध्याय ऐसे हैं जो हमारे लिए एक आदेश की तरह है, इससे पहले कि वो वहां पर क्रूस पर It was लटकाया जाए। instruction to the disciples. ये उन चेलों के लिए यहाँ पर आदेश था, Very important instructions as to how they are going to encounter fear, not to be afraid. एक बहुत ही जरूरी आदेश थी किस प्रकार से वो उस डर का सामना करे कि वो ना डरे। Do you know 14 times before Jesus was crucified, he have been telling them not to be afraid and that he would raise from the dead. और इससे पहले कि यीशु मसीह उस क्रूस पर लटकाया जाता, उसने 40 दफा इस बात को बोला कि तुम मत डरो और तुम मृत्यु से जिलाए जाओगे। 14 times. तो सॉरी 14 बार। Imagine Jesus telling them that, you see, even if I am crucified and I would be dead, but on the third day I will rise again. Come on, believe in me, trust in me. सोचिए करिए कि मैं अगर किसी दिन मैं क्रूस पर लटकाया गया और तीसरे दिन मैं जीवित होता और मैं कह रहा हूँ कि तुम मत डरो, तुम जिलाए जाओगे। I will go through all of the sufferings. I will be crucified, but I want to let you know, do not be troubled. Do not be afraid. मैं इन सब पीड़ाओं से होकर गुजरूंगा, इन सब परेशानियों से होकर गुजरूंगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मत डरो, तुम I will rise again from the dead. मैं फिर से उस मृत्यु से जी उठूंगा। But the irony of the situation was that the disciples did not listen to Jesus. लेकिन अचंभे की बात तो यहाँ पर यह है कि जो यीशु के जो चेले थे उन्होंने यीशु की ना सुनी। If they only had paid attention to Jesus, अगर उन्होंने सिर्फ ध्यान अपने यीशु की ओर दिया होता, they would not have gone through all of the pains and sufferings and fear in their heart. तो वो कभी भी उस स्थिति से ना गुजरते जब उनके मन में डर और व्याकुलता आई। They would not have been hiding in the room, वे कमरे में छिप रहे थे, waiting that the soldiers would come and catch them, arrest them, and crucify them like Jesus. वो इंतजार कर रहे थे कि कहीं वो सैनिक उस कमरे में ना आ जाए और यीशु मसीह की तरह उनको क्रूस God had a promise to protect them. खुदा ने उन्हें वायदा किया था उनको उनकी रक्षा करने। God had promised them that he would raise from the dead. खुदा ने उनको वायदा किया था कि वो फिर से उसको मृत्यु में से। So many of us have forgone
to listen to the promises of the living word. हम में से कितने जन हैं जो उसको भूल गए, जो परमेश्वर का जो वायदे हैं जीव परमेश्वर के। There are promises of God to take care of you and then to lead you and to give you a prosperous future. And everything is promised in the word. और खुदा ने बहुत से जो वायदे किए हैं कि वो तुम्हें उठाएगा, वो तुम्हें जीवन में छुटकारा देगा और जीवन में उन्नति देगा। ऐसे बहुत से वायदे हैं जो खुदा ने किए हैं That not a hair of your head will be harmed. कि तुम्हारे सिर का एक बाल भी उसका हानि नहीं होगा। But when we look at the situations, we become so fearful. लेकिन जब हम कभी स्थिति को देखते हैं हम बहुत डर जाते हैं। We do not listen, we do not remember the promises of the living word. हम खुदा के जो जीवित वचन है उसको सुनते नहीं हैं। खुदा को याद नहीं रखते। Telling again and again, I'm going to take care of you. जो खुदा है वो बार बार बोलता है कि मैं तेरा ध्यान रखूं, I'm always with you. मैं सदा तेरे संग रहूंगा, Peace I live with you. मैं अपनी शांति तुम्हें दिया। And in the midst of this, we still choose not to listen to him. और इन सब के बीच में भी हम ये चुनाव करते हैं कि हम उसकी ना सुने। And the disciples had to go through so much of fear. और जो चेले थे उनको इतने डर से होकर जाना पड़ा। Now, Jesus this afternoon is telling to each one of us who are here this afternoon, let not your heart be troubled. और अब यीशु यहाँ पर आज में बोल रहा है इस दिन में जो भी जन यहाँ पर है हम सभी से कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। What is that which is controlling your thoughts and bringing you worry, my dear brothers and ऐसा sisters? क्या चीज है जो तुम्हारी सोच को नियंत्रण कर रहा है और तुम्हारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित। Jesus has overcome the world. जो यीशु है उसने संसार को He has laid all of our thoughts, our worries, our curse on the cross. उसने उस क्रूस पर हमारे हर एक पाप, हर एक श्राप और हर एक स्थितियों को ले लिया And he wants us to receive his peace. और वो चाहता है कि हम उसकी शांति को ग्रहण करें। Not only unbelievers, but also believers behave very weirdly. और सिर्फ अविश्वासी ही नहीं लेकिन विश्वासी भी बहुत उल्टा पुल्टा सा बिहेव। We know the word. हम जानते हैं We वचन, have so studied the word. हम इस वचन का अध्ययन करते We हैं, hear the word. हम वचन को सुनते हैं, And we do not remember and we do not let the word manifest in our life. लेकिन हम उस वचन को याद नहीं रखते और उस वचन को अपने जीवन में प्रकट नहीं होने And देते you begin to conceive the fear in your life. और आप अपने जीवन में उस डर को गर्भधारण When you begin to allow various sorts of emotions to come into your life, it will rob you of your ability to think. तो जब आप अपने जीवन में बहुत सी जो भावनाएं हैं उनको आप आने देते हैं अपने जीवन में तो आपकी जो क्षमताएं हैं उनको लपेट के रखता And है। because emotions plays a very important role, Jesus is saying that you can control what you think. तो क्योंकि जो भावनाएं हैं आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर सकती है तो इसीलिए जो यीशु कहता है कि तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में कर सकते हो। You can choose what you allow emotions to enter your life. आप चुनाव कर सकते हैं कि किस भावनाओं को आप अपने जीवन में प्रवेश करने दें। Now the book of Psalm 32 verse 9 talks about an example of a horse. अब भजन संहिता की पुस्तक उसका अध्याय 32 का 9 यहाँ पर एक उदाहरण लेता है एक घोड़े का। It says, do not be like a senseless horse or a mule that needs a bit and a bridle to keep it under control. तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। Have you ever ridden a horse? क्या आपने कभी घुड़सवारी करी है? I remember many years ago, I think that was about 15 years ago, when I went up to Nainital. और मुझे याद है करीबन 15 साल पहले जब मैं नैनीताल में गया था, I feel pity for a very small donkey. मुझे वहां पर एक छोटा से जो गधा था उसके ऊपर बहुत दया I had to sit on the donkey. मुझे उस गधे के ऊपर बैठना। The donkey nearly gave up जो गधा था उसने मानो जैसे हार ही मान ली because I was too heavy for it. क्योंकि मैं उसके लिए बहुत भारी था And I really feel pity for the donkey. और मुझे उस गधे के लिए बहुत ही दया सी आई। But you know what? What I learned is when you begin to hold the bridle, लेकिन जानते जब मैंने क्या सीखा, जब आप उसकी उस लगाम को पकड़ते हैं it's tied up to
its nose and the face. वो उसके नाक और उसके चेहरे पर जबड़े पर पकड़ा हुआ होता है Control the horse. और आप फिर घोड़े को आप नियंत्रण कर सकते हैं And you can definitely make it run. You can let it turn left and the right. और वाकई में फिर आप उसको दौड़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको दाएं बाएं मोड़ सकते हैं The Bible uses an example. और अब ये जो वचन है ये इस उदाहरण का इस्तेमाल करो When you begin to live a senseless life, कि जब आप एक बेलगाम वाला जीवन जीते हैं then you begin to believe everything and anything. फिर आप किसी भी चीज पर और किसी पर भी आप विश्वास कर लेते हैं You see, we become like senseless human being without controlling our emotions. और हम देखो हम एक ऐसे मनुष्य बन जाते हैं जिसमें हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते It's like a horse and a donkey without a brit and a bridle. ये मानो कोई ऐसा घोड़ा या खच्चर है जिसमें कोई लगाम नहीं लगी It हो will run everywhere and anywhere. वो कहीं पर भी और सब जगह पर वो जा सकता When you allow your emotions and your thoughts to think, then it would become this array. तो जब आप उसको अनुमति देते हैं जो आपकी कल्पनाएं हैं आपकी जो भावनाएं हैं काम करने के लिए तो वो कहीं पर भी जा सकती हैं Your emotions will respond to anything and everything आपकी जो भावनाएं वो हर किसी पे वो बर्ताव करेगी या फिर किसी भी चीज पर because our emotions and our thoughts and our imaginations are so powerful. क्योंकि जो हमारी भावनाएं हमारी जो सोच है हमारी जो कल्पनाएं हैं वो बहुत ताकतवर होती हैं But God wants us to respond on the foundation and the promise of the Word of God. लेकिन खुदा चाहता है कि हम उस हमारा जो बर्ताव हो वो उस खुदा के वचन पर उस विश्वास पर हो Not to respond to anything and everything in life. ना ही किसी जीवन के हर एक चीज पर या किसी भी चीज पर हम बर्ताव करें You understand? क्या आप समझ पा रहे हैं When the way you respond to things matters a lot in your life. आपके जीवन में आप जिस तरीके से चीजों का बर्ताव करते हैं आपके जीवन में उसका बहुत असर पड़ता There might be two people standing, है हो सकता है वहां पर बहुत से लोग खड़े हों same situation, वही स्थिति हो same condition, वही कंडीशन हो but the response to the situation can be so different. लेकिन वहां पर स्थितियों में उनका बर्ताव करने का जो तरीका है वो अलग है। When the foundation of your life is the promises of God, जब आपके जीवन का जो आधार है जब वो खुदा का वायदा होता है then you will never respond in fear. तो फिर आप कभी भी उस डर में आप बर्ताव नहीं करेंगे A privilege we are to be the sons and daughters of the Most High God, that we live with a living hope. कि कितना ही बड़ा सौभाग्य मिला है उस खुदावन के पुत्र और पुत्री होने के नाते कि हम हमारे पास एक जीवित In आशा है every situation, there is hope हर एक स्थिति में उम्मीद है because you have a living Father. क्योंकि आपके पास एक जीवित पिता है When you look at sin, जब आप किसी पाप को देखते हैं when a person commits a sin, जब एक व्यक्ति पाप करता है when a person commits adultery or immorality, जब कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है and it allows his emotions and thoughts to go everywhere, फिर वो अनुमति देता है अपनी सोच और कल्पनाओं को कि वो This is कहीं not जाए grounded in the promises of God. वो उसकी जो सोच है वो उस खुदा के वायदों पर आधारित नहीं है Moment of time, you're not thinking how much pain it is going to cause to the family, to your close ones, to the people around you. फिर आप ये नहीं सोचते कि वो कितना दर्दनाक होगा और कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको आपके परिवार को वंशधारियों को And once the emotions go out of control, it's difficult to bring back the emotions into shape. और जब एक बारी भावनाएं जब वो अनियंत्रित हो जाती हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको नियंत्रण में लाना And now that is what Jesus began to talk about. Do not let your heart be troubled. और इसीलिए फिर जो यीशु मसीह यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना होने पाए Imagine someone who is about to die giving his last instructions and advice. कल्पना करें एक ऐसी व्यक्ति की जो अभी अपने जो मृत्यु को जाने वाला है लेकिन वो मरने से पहले कुछ आदेश दे रहा है And John 14, 15, 16 are very important chapters. और यूहन्ना का अध्याय 14, 15 और 16 बहुत ही महत्वपूर्ण Now, अध्याय हैं John chapter 16, verse 1, अब यूहन्ना के पुस्तक उसका अध्याय 16 के एक में Jesus says, My dear disciples, my dear friends, I'm telling you all of this advice
all of these instructions for your good. और यीशु यहाँ पर कहता है कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे जो भी मित्र हैं, मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, ये आदेश दे रहा हूँ सिर्फ आपके भले के लिए। Please do not be offended. कृपया करके आप बुरा ना माने। It says, I have told you these things so that you wouldn't abandon your faith, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। so that you would not fold, one of the versions says. तो फिर किसी एक वर्जन में कहता है कि तुम गिर ना जाओ। And the other version says, so that you will not, please do not feel offended, the Bible says. और दूसरा वर्जन कहता है कि ताकि तुम बुरे ना मनो। Did the disciples listen? लेकिन क्या चेलों ने सुना? No, the disciples didn't listen. नहीं, चेलों ने नहीं सुना। If they had listened to this word, they would not have been going through all the drama, all the confusion, all the fear they had to go through in the next couple of days. और फिर अगर चेलों ने उनकी इस बात को सुना होता तो फिर अगले कुछ दिनों में जो उनके ऊपर बीतने वाले थे उसमें वो डर में, चिंता में और परेशानी में ना जाते। I think this year had been a very challenging time for me. और ये जो समय है ये मेरे लिए बहुत ही चुनौती भरा है And there was overwhelming work from every angle. और बहुत ही तरीके से काम हो रहे हैं हर एक एंगल से। And then I began to go through sleepless nights. और फिर मैं एक ऐसे समय में गया जहाँ पे मैं रात को सो नहीं पा रहा And then I would wake up in the middle of the night और मैं रात को बीच में जग जाता था and I would pray. और मैं दुआ करता And I began to share this with my wife. और मैं अपनी पत्नी से इसको शेयर करने There's other thing that is troubling my heart. मैंने कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे मन में परेशान कर रही हैं Anything that the devil was trying to attack me. और ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो शैतान है वो मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा है And the only hope during that moment of time was the promises of the living God. और उस पल में जो मेरी उम्मीद थी वो सिर्फ यही थी खुदावन के वायदे। If I did not have the promises of God, अगर मेरे पास खुदावन के वायदे ना होते then I would have become mad. तो फिर मैं पागल हो जाता, Then I would have really given up. फिर मैं वाकई में हार मान जाता And I would see myself, I was reading the Word of God. I was trying to read some books on it, on faith, on his ability, on his love upon my life. और फिर मैं कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ता जो विश्वास पर आधारित है, उसके प्रेम पे, उसकी योग्यता पे आधारित है And I began to speak his promises over me. और मैं फिर उसके वचन को मैं अपने ऊपर And बोलना I began to remind myself of how I'm loved. और मैं फिर अपने आप को याद दिलाने लगा कि मुझसे किस Then प्रकार I began to start speaking the book of Psalm 23 over my life. फिर मैं अपने जीवन के ऊपर भजन संहिता की पुस्तक उसका अध्याय 23 बोलने लगा। The Psalm 23 is a book of covenant. जो भजन संहिता की पुस्तक उसका अध्याय 23 है वो एक वाचा It's है। a covenant of myself with God. ये एक वाचा है मेरी उस खुदा के संग। And in all of these promises, we would see how God did wonderful things. और इन सब वायदों के बीच में भी हम ये देख पाते हैं कि जो हमारा खुदा है उसने बहुत से आश्चर्य के काम किए। And I began to realize, oh, if I had just tried to remember what the Lord of God says, then I would not have gone through all of this. फिर मैं ये सोचने लगा कि काश अगर मैं एक बार भी उन वायदों को याद करता जो खुदा ने किए हैं तो शायद मैं परेशान ना होता। If I had only tried to focus my attention on the promises of the living God, तो अगर मैंने काश अपना जो ध्यान है वो खुदा के उस वायदों पर लगाया then I would not have gone through all of these sleepless nights. फिर मैं उन रातों से ना गुजरता जिसमें मैं सोया नहीं। And I began to understand how the disciples might have gone through those sleepless nights, all just because they never paid attention to what God told them. फिर मैंने पाया कि किस तरीके से वे जो चेले हैं वो इतने दिन तक रात को नहीं सो पाए, उस डर में जीते रहे क्योंकि उन्होंने खुदा के उस वायदे So how many of you are going through sleepless nights? आप में से बहुत से लोग हैं जो रात को सो नहीं पा रहे हैं। You are going through tensions of life, आप अपने जीवन की बहुत सी चिंताओं में fearful about your future, आपके पास डर है अपने भविष्य को लेकर, fearful about your career, अपने करियर को लेकर डर, fearful about your health, अपने स्वास्थ्य को लेकर डर है, fearful about everything that is attacking you. हर एक बात का डर जो आप पर हमला करे। And what Jesus told you was the word not to let your hearts be troubled, but to trust and believe in Him. और यीशु जो वचन बोलता है वो ये बोलता है कि जो तेरा मन है वो व्याकुल ना हो लेकिन तू पूरी तरीके से तू मुझ पर विश्वास But because we do not remember the promises of God, we have allowed ourselves to go through the season of so much pain
without any results. और क्योंकि हम उन खुदा के वायदों को हम याद नहीं करते, इसीलिए हम अब अनुमति देते हैं अपने जीवन को कि हम उन सारे दर्द और परेशानियों में से गुजरे। Fear is powerful. जो डर है वो बहुत ताकतवर Do you होता है। know fear is one of the powerful weapon of the devil? क्या आप जानते हैं कि जो डर है वो सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार है शैतान का। And when you begin to release fear, और जब आप उस डर को अब छोड़ते हैं, when you entertain fear, जब आप उस डर का आनंद लेते हैं, the more you fear, it releases more the power of the devil. तो आप जितना ज्यादा उस डर का आनंद लेते हैं उतना ही ज्यादा वो उस डर की ताकत को, जो शैतान की ताकत को वो लाता I है। remember when I was a kid, I came across a story, मुझे याद है जब मैं बच्चा था, मुझे एक कहानी याद थी, and it was all about fear. और ये डर से And the children was so afraid of a shadow. और The child was so afraid of a shadow. एक बच्चा था जो छाया से बहुत डरता था, And the more he feared, the shadow, the devil, or the shadow of the evil became bigger and bigger. और वो बच्चा जितना डरता था वो जो शैतान की जो छाया था वो और बड़ा होता जाता था। And once his mother told him not to be afraid. और वो एक दिन उसकी माँ ने कहा कि तुम डरना मत, The more you were afraid, the more bigger the image will become. तुम जितना ज्यादा डरोगे उतनी ज्यादा ही उसकी जो छवि है वो बड़ी होगी। But the more you're stronger, the less fearful you are, you will see the shadow of the devil diminishing from your life. तो अगर तुम जितना ही कम डरोगे, तुम जितने बहादुर बनोगे, तो आप देखोगे जो शैतान की जो छवि है, छाया है, वो उतनी छोटी होती जाएगी। And that story reminded me, और ये जो कहानी है ये मुझे याद आई, if you entertain fear, अगर तुम उस डर में जीते रहोगे, you are not facing situations आप उस स्थिति का सामना नहीं कर रहे without realizing the presence of God in your life. बिना इस बात को जाने कि खुदा की उपस्थिति आपके जीवन में है, It releases more power of the devil. फिर ये शैतान को और ताकतवर बनाता है। Just as faith, if you begin to entertain faith in your life, जैसे कि जो फेथ और फेल vishwas, और जैसे विश्वास, आप जितना विश्वास में बढ़ते हैं, then it activates the power of God. फिर वो उस खुदा की ताकत को वहां पर वो चालू करती है And you begin to receive the power of God. और फिर आप खुदा की सामर्थ को आप पाते हैं। Faith allows you to act. जो विश्वास है वो आपको अनुमति देता है कि तुम कार्य करो। Faith allows you to speak. जो विश्वास है वो तुम्हें अनुमति देता है कि तुम Although बोलो। the faith is small as a mustard seed, you can speak to the mountains of your problems. तो वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने के समान भी विश्वास है तो तुम उस जो परेशानी का जो पहाड़ है तुम उससे बोलो। And as I always say, faith and mountains can never be proportionate. और जैसे कि मैं कहता हूँ कि जो विश्वास है और जो पहाड़ है वो कभी भी एक समान नहीं हो सकता। So, my dear brothers and sisters, it is not only about believing the right thing, it is also about not fearing. तो मेरे प्यारे भाई और बहनें, ये सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि तुम किसी बात पर विश्वास करो, लेकिन ये भी है कि तुम ना डरो, It's controlling your emotions. अपनी भावनाओं को नियंत्रण So करो। now the question comes, how is sin and fear conceived in our life? तो इस सवाल ये है कि किस तरीके से जो पाप और ये जो डर है हमारे जीवन में हमें भ्रमित करता है। The sin that you do, जो पाप जो आप करते हैं, the fear that is manifested in your actions, जो डर जो आपके कामों में दिख रहा है, happens because you have conceived those in your life. ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने उन सब को अपने जीवन में स्थान दिया। A child can only be born एक बच्चा जब ही पैदा हो सकता है when the mother conceives it. जब माँ उस बच्चे को, वो बच्चा उसके गर्भधारण If में, the mother does not have the baby in the womb, अगर माँ के गर्भ में वो बच्चा ही ना हो then the child will never be born. तो फिर वो जो बच्चा है कभी जन्म नहीं लेगा। I just came across a reel about 2 weeks ago as to how in China they are creating artificial womb in the robots. और मैंने इस रील को देखा था कि किस प्रकार से जो चाइना में है वो एक नकली गर्भ को रोबोट के अंदर बना रहे हैं And the robot's womb can conceive a child. और जो रोबोट की जो गर्भ है उसमें वो गर्भधारण I बच्चा hope हो and सकता है। pray that none of your children will be robots' children और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप में से किसी की भी जो बच्चे हैं वो रोबोट के बच्चे ना हो in the future. भविष्य में। I want you to go to the book of James chapter 1 verse 13 and 14. मैं याकूब की पुस्तक उसका अध्याय 1 का आयत 13 और 14 में जाना चाहूंगा।
The Bible says, when tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. जब 13th वर्स, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। Verse 14. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। If you look at this verse carefully, अगर आप इस वचन को ध्यान से देखें, it talks about temptation, ये बात करता है परीक्षा के बारे में that God never tempts. कि खुदा कभी भी परीक्षा नहीं ले। Rather, in verse 14, आपने इस 14वीं आयत में पढ़ा, says, You are the reason for your own temptation. वचन कहता है कि तुम ही खुद अपनी परीक्षा का कारण बनते हो। You are the reason for all of the desires, evil desires that is growing in your life. तुम खुद ही कारण हो उसके कि जो भी बुरी इच्छाएं तुम्हारे मन में जो बढ़ रही हैं। The Bible says that. वचन ऐसा कहता है, I never said that. मैंने कभी नहीं कहा। So let's try to break this down and understand what does it mean. आइए हम इसको थोड़ा तोड़ते हैं और वाकई में देखते हैं कि इसका क्या अर्थ है। The Bible talks about our thoughts, वचन बात करता है हमारी सोच के बारे में, our thinking, हमारे विचारों के बारे में, renewing our thoughts. हमारे विचारों को नया करने के बारे में। Therefore, the Bible talks about emotions. यहाँ तक कि वचन है भावनाओं के बारे में भी बात। When you begin to entertain certain emotions, you keep thinking, you keep talking negativity, you begin to entertain negativity in your mind. जब आप उन जो कल्पनाएं हैं, आपकी बुरी कल्पनाएं हैं, जब आप बार बार ही उसको सोचने लगते हैं और उसका आनंद उठाने लगते हैं, When you also begin to keep speaking always only negativity. फिर आप ये लगातार आप अगर नकारात्मक बातें बोलते रहते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता. All of this ये is not सब कुछ possible. Yes, please. ये सब कुछ कि ये ऐसा संभव नहीं है। And that he is not good and she is not good. ओ ये अच्छा नहीं है, वह अच्छी नहीं है, I'm not good, मैं अच्छा नहीं, not fit for this. मैं इसके लिए सही नहीं हूँ, My future is dark. मेरा जो भविष्य अंधेरे में है, My life is not good. मेरा जो जीवन है वो सही नहीं है। You keep on talking all of this. And also when you meet people, you begin to entertain all kinds of this kind of talk. और आप ये सब बातें बोलते रहते हैं और जब लोगों से मिलते हैं तो उनसे भी आप ये बातें बोलते हैं। And what really happened is that then you began to conceive all of the sinful emotions in your life. फिर क्या होता है कि आप ये सब जो गलत भावनाएं हैं, आप इनको अपने जीवन में Even गर्भ करते even the हैं। kind of pictures you look at, और यहाँ तक कि जिन तस्वीरों को भी आप देखते हैं, the kind of video and the movies you look at. जिस प्रकार के आप मूवीज और तस्वीरों को देखते हैं, Who is your closest friend? आपका सबसे करीबी दोस्त The people you listen to. जिन लोगों को आप सुनते हो, So all of this plays such an important role that gradually it began to conceive in your life. तो ये सारे लोग हैं आपके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं जो आपके जीवन में मदद करते हैं And finally, कल्पनाओं को लाने में। it gives birth to your sin. फिर अंत में जाकर वो एक पाप को जन्म दे। Psalm 34 verse 1 says, भजन संहिता की पुस्तक उसका अध्याय 34 एक Bless the Lord at all times, and his praise should continually be in my mouth. कि मैं खुदा को सदा के लिए हर समय मैं उसको आशीषित दूंगा और मैं मेरे मुख में सदा उसकी महिमा निरंतर रूप से मेरे मुख में होती रही। Is it possible to praise God all the time, क्या ये संभव है खुदा को हर पल उसकी स्तुति कर, even when you are going through difficult times? यहाँ तक कि जब आप कठिनाई के समय में गुजर रहे हो? It says, I will praise him continually. ये कहता है कि मैं लगातार उसकी स्तुति करता रहूंगी। It is possible that you know the verse. ये संभव है कि तुम वचन को तो जानते Even हो, while you are speaking, you quote the verse. यहाँ तक कि जब आप बोल रहे होते हैं आप इस वचन को बोलते But हैं, when challenges comes, लेकिन जब चुनौतियां आती हैं, when problems comes, जब परेशानियां आती हैं, then you begin to embrace those fears. फिर आप उस डर को आप बढ़ावा देने लगते हैं। Why do we have to rejoice all the time? क्यों हमें हर पल आनंदित रहने की जरूरत है? The beauty of becoming a follower of Jesus is that you can rejoice in every situation. जो सुंदरता है खुदा का एक विश्वासी होने में वो ये है कि तुम हर पल आनंदित रह सकते हो। Hallelujah. Amen.
No, I am not telling to be happy all the time. अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर पल खुश रहें, I am not हंसते रहें। telling you to smile all the time. मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर पल मुस्कुराते रहें। But I'm telling you the rejoice is much more deeper. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुम आनंदित रहो और ये वाक़ई में कई ज़्यादा गहरा है। Amen. You can rejoice in every situation because there is hope. आप हर एक स्थिति में आप आनंदित हो सकते हैं क्योंकि आपके पास एक आशा है, A loving Father क्योंकि आपके पास एक प्रेम करने वाला who पिता loves you जो आपसे प्रेम करता है and He takes care of you. और वो आपका ध्यान रखता है। Many times you think of your problems and burdens. कभी-कभी हम ज़्यादातर समय हम अपनी परेशानी और अपने बोझ के बारे में सोचते हैं। You think about your burdens आप अपने बोझ के बारे में सोचते हैं and you become so sad. और आप बहुत ही उदास हो जाते हैं। I want to tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। Do you know that the burdens that you carry is so insignificant to the burdens He carries for you? कि आप जानते हैं कि जो बोझ आप अपने मन में लिए फिरते हैं उसका इतना सा भी महत्व नहीं है उसके सामने जो बोझ उसने हमारे लिए उठाया है। That alone is enough to make you rejoice. वो अकेला ही काफी है कि वो आपको आनंदित करे। There are many things that is happening in your life right now that you don't even know. आपको शायद पता भी ना हो आपके जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो घट रही हो। Just at the beginning of this year, some prayer warriors came to my house from Nagaland जैसे कि इस साल की शुरुआती में कुछ प्रार्थना करने वाले लोग मेरे घर पर आए and they were praying for our family. और वो हमारे परिवार के लिए दुआ कर रहे थे। Then time came to pray for my wife. और वो एक समय है जब वो मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। And a very powerful prayer warrior, she began to speak a word of prophecy about what happened to her. और एक प्रार्थना करने वाली बहन ने एक भविष्यवाणी की जो कि क्या भी कि जो हो रहा है उसके बारे में। Now, she said that you don't even know this, but you had cancer. फिर उसने कहा कि शायद तुम्हें पता भी नहीं है लेकिन तुम्हें कैंसर था And without your knowledge, the Lord healed your cancer. और बिना तुम्हारे जाने खुदा ने उसको चंगा किया। I believe that. और मैं इस पर विश्वास करता हूँ And I believe God can do many things without our knowledge. और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा बहुत कुछ कर सकता है आपको बिना पता चले। Even while you're coming to the worship, while you're worshiping Him, living a life for Jesus, you don't even know every minute what's happening with your life. और यहाँ तक कि जब आप इस आराधना में आते हैं और हर पल जब आप उसकी स्तुति आराधना करते हैं तो हर एक मिनट में आपके जीवन में क्या घट रहा है You, शायद आपको पता you हो are ना हो। even healed without your knowledge. यहाँ तक कि आप चंगे भी हुए हो आप ठीक भी हो जाते हैं बिना आपके पता चले। You are protected without your knowledge. आप सुरक्षित किए गए हो बिना आप जाने। And you will know all of this one day when you meet Jesus in eternity. और एक दिन आप ये सब बातें जानोगे जब आप एक दिन उस खुदावन यीशु के सामने आप उससे मिलोगे। So He carries your burdens, तो फिर वो आपके बोझ को He उठाता carries है, your sorrows. वो आपके दुखों को उठाता है। And His burden is much more than your insignificant burdens. उसका बोझ कई गुना ज्यादा बढ़कर है आपके इस छोटे से बोझ। At the end, I just want to close with John chapter 16, verse 33. और मैं ये कहकर अब खत्म करता हूँ यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 16 का And 33। I want you to digest these words for you even as you listen to the word this afternoon. और मैं चाहता हूँ कि तुम इस वचन को पचा लो जब तक तुम इस वचन को सुनो। I have told you these things. This is told by Jesus. ये Okay? यीशु के द्वारा कही गई हैं। I have told you these things so that in me you may have perfect peace. In the world, you will have tribulations, you will have distress, you will have sufferings. But be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy. For I have overcome the world, and my conquest is accomplished, my victory abiding. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम संसार में तुम्हें कलेश होता है परंतु धाड़स बांधो मैंने संसार को जीत लिया है। Jesus speaks these words to his disciples in the situation of great distress, great fear.
और यीशु मसीह ये जो वचन है ये अपने चेलों से बोल रहे हैं उस स्थिति के बीच में जहां पर सबसे ज्यादा मानसिक तनाव और डर है। And irrespective of every problems and emotions and trials and tribulations and sufferings that every one of us are going through in our own seasons of life, और इसके बजाय कि हम सब हमारे जीवन में जो भी सताव, जो भी परेशानियां, फिर जो भी मुश्किलें हैं जिसमें हम गुजर रहे हैं, no matter whatever emotional problems, physical problems you're going through right now, फर्क नहीं पड़ता आपके मन की कौन सी मानसिक समस्याएं हैं या फिर आपके मन की जो समस्याएं हैं, फर्क नहीं पड़ता। Jesus wants to tell you, be courageous यीशु कहता है कि तुम हिम्मत बांधे रखो because I have overcome the world for you क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए संसार को जीत लिया है and I have given you the victory. और मैंने तुम्हें विजय दी है। And all you will have to do is to praise continuously, irrespective of every situation. और सिर्फ तुम्हें ये करना है कि हर स्थिति में आप उपासना और स्तुति करते हो। Close around.